Trusts BEd College. Today we are celebrating National Consumer Rights Day. Today is 24th of December. So let us first understand why do we celebrate this day on the 24th of December. So on this day in the year 1986, the Consumer Protection Act, which was enacted by the Government of India and approved by the President of India, was finally presented in the Parliament and it got the approval on 24th December 1986. It was one of the most historical milestones in the history of India because this act actually is important to protect the rights of the consumers. जैसे कि एक्सप्लॉयटेशन से बचना या फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जैसे कि कंज्यूमर्स को जो फंसाया जाता है, उनको गलत तरीके के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज दिए जाते हैं, उनसे बचने के लिए वी नीड दिस एक्ट. The major purpose of this act is to make the consumers aware about the products and services available in the market and to meet their immediate as well as long-term needs. So let us understand what are the 6 different rights of the consumers that we have in India. First one is the right to be protected. So according to this right, it means that the consumer has the right to be protected from the goods and services which are hazardous to life. मतलब जो हमारे लिए सेफ नहीं है, जो हमारे हेल्थ के लिए सेफ नहीं है, ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से बचने का हमको पूरा अधिकार है. This right also means that the goods that people purchase or the services that the people avail, they must not only fulfill the immediate need, but they must also satisfy the needs in the long term. तो अभी के नीड्स की सेटिस्फाई करना इस कंज्यूमर राइट एक्ट का मकसद नहीं है, बट लॉन्ग टर्म नीड्स भी कंज्यूमर के सेटिस्फाई होनी चाहिए एंड द कंज्यूमर्स शुड बी सेटिस्फाइड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो जैसे कि हमारी जिम्मेदारी है क्वालिटी चेक करना प्रोडक्ट या सर्विसेज की, एक्सपायरी डेट चेक करना, मैन्युफैक्चरिंग डेट चेक करना. सो दिस इज समथिंग दैट वी कैन डू ऑन आवर पार्ट. सेकेंड इज राइट टू बी इन्फॉर्म. राइट टू बी इन्फॉर्म मतलब जो प्रोडक्ट हम खरीदते हैं या जो सर्विस हम खरीदते हैं उसका इंफॉर्मेशन हमको पता होना चाहिए. सो इट मीन्स दैट द कस्टमर और द कंज्यूमर मस्ट बी प्रॉपरली इन्फॉर्म्ड अबाउट द क्वालिटी, quantity, price, standard, manufacturing company, okay, or the price of the product to safeguard the consumer from any kind of illegal practices, unfair means या फिर unfair frauds or any kind of wrong things that happen with the customers. Consumers should insist on getting all the information before taking a decision. तो जैसे कि हम कभी भी एक प्रोडक्ट खरीदने के लिए जाते हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में, उस कंपनी के बारे में पूरी तरह से जानकारी होना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. प्रोडक्ट खरीदने से पहले या सर्विसेज लेने से पहले वी शुड बी अवेयर अबाउट व्हाट वी आर परचेसिंग एंड हाउ द प्रोडक्ट इज गोइंग टू बेनिफिट द कंज्यूमर. थर्ड वन इज राइट टू बी हर्ड. It basically means that consumer interests will receive due consideration at appropriate forums. This also allows the consumer to form different types of non-political and non-commercial consumer organizations, which will be given representation by various committees formed by the government at different types of occasions relating to the consumers. तो इसका मतलब है कंज्यूमर्स के जो नीड्स है वो गवर्नमेंट और बाकी के जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अच्छे से समझना और उन नीड्स के हिसाब से प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मार्केट में लेके आना. फोर्थ वन इज राइट टू बी अश्योर्ड. इसका और एक वर्ड है राइट टू चूज. दिस मीन्स दैट द कंज्यूमर हैज फुल राइट टू चूज द प्रोडक्ट्स ऑफ देयर चॉइस or to have a full access to variety of goods and services in the market at competitive price. मतलब सिर्फ एक ही प्रोडक्ट नहीं, बट एक प्रोडक्ट जैसे काफ़ी बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में अलग अलग प्राइजेस से, अलग अलग रेट्स के हिसाब से कंज्यूमर्स को पाने का अधिकार है. इन केस ऑफ मोनोपोली or a monopoly market, it means that the consumer has full right to get access
with satisfactory quality and good services at a fair price. और जो बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज हैं जैसे कि राइस, दाल, कपड़े या फिर जो हमको बेसिक नेसेसिटी है उन प्रोडक्ट के लिए भी उन प्रोडक्ट को एक्सेस होना, उन प्रोडक्ट का एक्सेस होना ये भी कंज्यूमर का पूरा अधिकार है। फिफ्थ वन इज राइट टू सीक रिड्रेसल। रिड्रेसल मतलब अगर कंज्यूमर को किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो कंज्यूमर वो इशू या प्रॉब्लम कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस को या गवर्नमेंट को कन्वे कर सकता है। सो दिस इज बेसिकली द कंज्यूमर कैन सीक रिड्रेसल अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ अनफेयर प्रोडक्ट सर्विस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और एनी काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कस्टमर्स। किसी को फंसाया जा रहा है, किसी के साथ ज़्यादा पैसे लेके खराब प्रोडक्ट दिए जा रहे हैं, तो ऐसे बारे में कंज्यूमर्स कंप्लेन कर सकते हैं। कंज्यूमर्स मस्ट टेक दिस कंप्लेंट वेरी सीरियसली। कभी कभी ऐसे होता है कि कंज्यूमर का कंप्लेंट बहुत छोटा होता है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हैज़ अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी और बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकता है एक कंप्लेंट की वजह से। सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस, कंज्यूमर रिड्रेसल forums do take these complaints and they address them to work on them to solve the issues at the earliest. Last one is right to education. राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन और राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस दोनों का मतलब सेम ही है। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन मतलब कंज्यूमर को अवेयर होना, कंज्यूमर को सतर्क होना, एजुकेटेड होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट में आजकल बहुत ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो नकली या फिर AI